Dear students, welcome to Dabad Academy. I am Rupesh Yadav, Chief Instructor at Dabad Academy. In today's session, we will provide you with the very short summary solutions of today's exam, RIMC December 2020. It was conducted today on 9 Jan 2021 due to COVID situation. In this session, we will cover maths portion only. Also, PDF solution of this exam paper that we are going to cover is available in our Telegram channel. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन कर लें. बेसिकली एग्जाम पेपर वॉज नॉट वेरी टफ, नाइदर इट वॉज ईजी. 10 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे. अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की होगी तो वहाँ पर आप टाइम बचा सकते थे. नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर सेज कि x इज इक्वल टू 3/2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 2/3 रेज टू पावर -4 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर -2. नाउ सर्च एंड इंडिसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट व्हाट यू विल डू इज कि जो पावर -4 है उसको आप +4 कर देंगे. सो इनर ब्रैकेट को आप रिवर्स कर देते हैं. 3 रेज टू पावर 2 बन गया. जब बेस कॉमन होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. सो x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2 6 and since we had to find out the value of x square, so x square would be 3/2 6 into 2 12. Or x, we already know that x raised to power -2 is equal to 1 by x square. So 1 by 3/2 raised to power 12. Also we can separate these 1 by 3/2 by 2/12 and a upon b by c का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं then it would be 2 raised to power 12 by 3 raised to power 12. So the answer for first question is 2 raised to power 12 by 3 raised to power 12. This is the answer. In question number 2, we have if 4x square plus y square is equal to 40 and xy is equal to this, then we have to find out the value of 2x plus y. Okay, so we will be using the identity a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Now putting all these values, since we are already provided with 2x plus y raised to power 2 is equal to 2x square plus y square plus 2 into the value of a is 2x multiplied by y. Now solving this, LHS 2x plus y raised to power 2 is equal to 4x square plus y square plus 4xy. Now we already know that since 4x square plus y square is equal to 40 and xy is equal to 6, so putting these values plus 4 into 6, 2x plus y whole raised to power 2, so 2x plus y, जब स्क्वायर रूट को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो it would become under root and 64, so root 64 is 8, so the value of 2x plus y is equal to 8. So yes, second question का आंसर है 8. In question number 3 we have solve this and we have to find out the value of variable which is x. Now in this question 17 into 1 minus x minus 5 x plus 12 is equal to 8 multiplied by 1 minus 7x, right? Okay, so 17 minus 17x minus 5x minus 16 is equal to 8 minus 56x, which upon further solving will get to 56x minus 22x is equal to 51, which x को जब हम माइनस कर देंगे, वेरिएबल्स हैं दोनों, वेरिएबल्स को जब माइनस कर देंगे तो रिजल्ट वुड बी 34x is equal to 51. Therefore x is equal to, which upon further solving will get to 56x minus 22x is equal to 51, which x को जब हम माइनस कर देंगे, वेरिएबल्स हैं दोनों, वेरिएबल्स को जब माइनस कर देंगे तो रिजल्ट वुड बी 34x is equal to 51. Therefore x is equal to 51 by 34. 17 3 by 2, so the value of x is 3/2. Question number 3 का आंसर 3/2 है. Now moving on to question number 4. In question number 4, examiner asks us that how many prime numbers are there up to 100. Okay, so there is a direct, आपको क्लासरूम प्रोग्राम्स हम यूजुअली बताते रहते हैं, आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए. So direct answer is 25, but if you have to, there are 25 numbers, prime numbers from 1 to 100, starting from 1 up to 100. और अगर आप राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे then you could have written in
this phase, this manner up to, and the last one is 97. So 25 is the answer for question number 4. In question number 5 we have, what number should be added to this to make it exactly divisible by 33? So let's do one thing, that we just divide it. There are two methods to solve this question. Actually हम 33 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको आप ऐड कर जो हमारे पास डिवीजन थ्योरम है उसको आप लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर डिविजिबिलिटी बाय 33 करना है देन द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ कैपिटल लेटर्स में, बोथ 11 and 3. सो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बोलता है ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स का सम है माइनस इवन प्लेसेस पे जो सम है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 11 और 0. सो हम उसके वैल्यूज रख देते हैं 2, 3, 1, 2, 8. सो सम ऑफ द डिजिट्स इज 18. इन सब का तो 3 से डिविजिबल है, 3 की टेबल में आ जाते हैं. ऑल्सो ऑड प्लेसेस को हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं. सो 1, 3, 5 एंड इवन प्लेसेस को हम येलो से हाईलाइट कर देते हैं. सो 2, 1, 2. सो इनका सम आ गया 8 + 2 + 3 13. ऑड प्लेसेस का जो सम है दैट इज 13 एंड इवन प्लेसेस का जो सम है दैट इज 2 + 1 + 2 is 5. Okay, so this is like 13 - 5 is equal to 8. Now 8 से जो नेक्स्ट जो 11 की टेबल में जो आता है वो दैट इज 11 itself. To make 8 11 we have to add 3. So now we know that 3 should be added to the number. इस नंबर में क्या ऐड करना चाहिए था 3. अगर 3 से ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट होगा that would be divisible by 33. So 3 is the answer. 3 should be added. In question number 6 we have 4 bells begin to toll together and toll respectively this. How many times will they toll together in an hour excluding the one at the start? Now this is really important. जो उन्होंने आखिरी में कहा है कि फर्स्ट में जो टोल किया है उसको इग्नोर कर देना है at the very beginning. Okay, so basically we will find out LCM of 5, 6, 8 and 12, which upon solving will get 120. And if they toll every 2 minutes, then in 60 minutes, actually 120 seconds is equal to 2 minutes, right? So in 60 minutes by 2 minutes is equal to 30 times. So it was an easy one. Now one thing that you have to remember is कि जो first time जो toll किया था वो हमने ignore कर दिया है. In question number 7 we have, when a ball bounces, it rises to 2/3 of the height from which it fell. If the ball is dropped from a height of 36 meters, okay, so this is the height, 36 meters, and it has to bounce 3 times. So after third bounce, what would be the height? Okay, so for every, so let us suppose this is the first bounce. In first bounce, it rises to 2/3 of 36, which gets to 24 meter. In second bounce, it is again bouncing 2/3 of 36, so which is 16 meter. In third bounce, it will again rise to 2/3 of what? 16 meter. So that will be 32/3, and upon further solving that would be 10.6 meter. So right, 7th question का answer है 10.6 meters. Now moving on to question number 8. Examiner says 2 numbers are in the ratio 3:5. So academy में usually classes के दौरान भी हम बताते रहते हैं बच्चों को that whenever there is a ratio, question of ratio, so आप हमेशा let the constant be x. Let the constant be x. So 3:5, then the numbers would be 3x and 5x, right? Okay, so according to question, इनमें से subtract किया गया है 9 both numerator and denominators में, and then we obtain 23. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर you will obtain, थोड़ा सा एक बार हम क्विकली कर देते हैं, 69 माइनस रीअरेंज 2 स्टेप्स एक साथ कर दिए हमने आपको, 23 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस ब्रैकेट 12 into 9, right? Okay, and upon solving 9x is equal to 99, x is equal to 11. So the constant is 11, so the numbers would be 3x is equal to 3 into 11 is equal to 33, and this one is 5x, 5x is equal to 5 into 11 is equal to 55. So these are the numbers. Perfect. Then moving on to the next question. In question number 9 we have, it was a rather easy question based on straight line angle property. So I won't be drawing the diagram. So sum of all these, एक जो straight line होते हैं उसके सभी angles का sum जो होता है that is 180. तो what we will do is कि x plus 20 plus 50 plus x minus 10, when we add all these they should add up to 180.
सो 180 करेंगे तो वेरिएबल्स का सम एक साथ कर देते हैं, दैट वुड बी 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, देन 2x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 120 बाई 2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो राइट, सो 9th क्वेश्चन का आंसर x इज इक्वल टू 60 डिग्री. Moving on to the next question, question number 10. In question number 10, how many 6 meter cubes can be cut from a cuboid measuring these dimensions? So pretty standard question from area and volume portion. So number of by 100. So markup price को हम RHS में रख लेते हैं यहाँ पर, and all these को इनको solve करेंगे. So 114.28 is equal to markup into 1 minus, okay, 100 minus this thing is 88.89. So further solve कर लेंगे इनको हम, और हम लोगों ने आपके लिए solve करके इसको, so the value of this is 128.56. So markup percentage अगर आपको निकालना है तो markup कितना higher percentage में था, so 128.56 minus 100 and the answer would be 28.56%. So 12th question का आंसर है 28.56%. So in question number 13, what we have to find out is कि the smallest digit of 5 numbers. So it has to be divisible by 432. So we already know that the smallest 5 digit number is 10,000. So हम क्या करते हैं, जो given numbers हैं उनका quickly एक बार जल्दी से LCM find out कर लेते हैं, and we found out that LCM of these numbers is 432. So 432 को 10,000 से हम divide करेंगे, then the remainder is 64. It means कि this number 10,000 जो least number 432 से divide होता है उससे 64 ज़्यादा है. So आप क्या करेंगे, 10,000 minus 64 कर देंगे, तो you would get okay 6399. So 9936 is the number which is of 4 digits and complete divisible by 432. So 9936 में अगर आप 432 ऐड कर देंगे, then you would obtain 10368. So this is the least number of 5 digits which is complete divisible by 432, and eventually all these numbers 16, 24, 36 and 54. This is the answer. Moving on to question number 14. In question number 14, picture based. Now move on to question number 14. Now let's move on to question number 14. In question number 14, we have a diagram based question. There is a picture given with certain properties. So I won't be drawing the diagram. Just refer to what I am saying. So angle BAC is equal to 90 degree. Also it is given that particular AF is equal to OA is equal to OD is equal to OF. All these are equal. So also EO is parallel to CA. I hope आपने corresponding angles के और ये सब चीज़ें पहले से पढ़ रखी होंगी. So all those properties we'll use here. DO is parallel to BC. ठीक है. Now since all 3 angles in equilateral triangle are equal, तो आप अगर AOF को अगर आप देख पा रहे हैं, so AOF in AOF 3 sides are equal, so it is an equilateral triangle. Okay, so equilateral triangle है, so angle F is equal to 60 degree. Angle F is equal to 60 degree. It is also equal to angle C. ठीक है, because DF is parallel to BC. DF is parallel to BC, so they become corresponding angles. Also, angle C is equal to angle X because OE is parallel to FC. Again, corresponding angles का property लग जाएगा यहाँ पर हमारे पास. So we have to find out the value of X. So X का value जो है यहाँ पर, this is 60 degree. ठीक है, just study the diagram and you will get your answer. In question 15. In question number 15, we have a man buys dry fruits at the rate of 100 rupee, 80 rupee and 60 rupee per kg. Okay, so these are per kg. He mixes them in the ratio of 3:4:5. Okay, 3:4:5 में उनको mix किया है. 3 parts, 4 parts and 5 parts in the total by weight and sells at a profit of 50%. At what price per kg does he sell the dry fruits? Okay, so let the constant of this thing be x, या फिर x माने बिना भी हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. ठीक है, सो अगर उसका 3 रेशो में अगर टोटल मिक्सचर में किया है तो हम टोटल मिक्सचर का कॉस्टिंग कितना होगा वो बता लेते हैं हम लोग. सो लेट सपोज ही बाइज 3 kg ऑफ 100 रुपी, तो इट वुड बी 300 रुपीज़ का ये बाई किया उन्होंने. 4 kg ऑफ 80 रुपी, सो 320 प्लस 5 of C type which is 5 6 are 30, 300 rupees. So when you add all these, so you will get total money that he spent is 920 rupees, 920. Okay, and also he got a profit percent of 50% of total this thing cost price. Profit is 50%, so total profit in rupees
This is profit percent. Profit in rupee would be 50% of 920. So मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एंड अपॉन कैलकुलेशन यू वुड गेट 460 रुपीज़। ठीक है, सो आपका क्या था, आपने जो इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा SP, सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज 920 प्लस 460 इज 1380। ओके, सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस पर केजी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, पर केजी अगर निकालना है तो टोटल कितना, 3 + 4 + 5 इज 12 kg। सो पर केजी जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 1380 डिवाइडेड बाई 12 एंड दैट गेट्स डाउन टू 115 रुपी पर केजी। So this is the answer for question number 15. Moving on to question number 16. In question number 16, ट्रेन प्लेटफॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस हर बार आते हैं इस एग्जाम में। होपफुली आपने लास्ट ईयर के जो एग्जाम पेपर्स की बुक RMC आपके प्रोस्पेक्टिव के साथ जो भेजती है वो आपने जरूर देखी होगी, सॉल्व करने की कोशिश किया होगा उसको। सो उसमें खूब सारे क्वेश्चन थे इस पर बेस्ड। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवलिंग एट द रेट स्पीड ऑफ 80 km/h ओवरटेक्स ए गुड्स ट्रेन, सामान की जो गाड़ी था, ट्वाइस एज लॉन्ग एंड गोइंग एट 40 km/h on a parallel track, okay, in 54 सेकेंड। क्लासिक रिवर्स डायरेक्शंस में जब स्पीड जाती हैं, ट्रेन्स जाती हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड किस जगह प्लस होती है, किस जगह माइनस होती है, वो हमारे को याद रखना था इसमें। सो वी हैव एक्सप्रेस ट्रेन एंड द अदर वन इज गुड्स ट्रेन। सो दिस इज द गुड्स ट्रेन, ऑलराइट। सो द स्पीड इज 80 km/h and the speed of this one is 40 km/h. We have a shortcut formula for converting the speed in मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज km 518। सो उससे आप इनकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड में निकाल लेंगे। ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। सो 40 × 5/18 द स्पीड वुड बी इन मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, नेक्स्ट, सो ट्वाइस एज लॉन्ग। सो लेट अस सपोज कि लेंथ ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज, लेट लेंथ इज इक्वल टू L। सो इनका L मीटर है तो इनका लेंथ जो होगा दैट वुड बी ट्वाइस एज लॉन्ग, इट मीन्स 2L मीटर। ओके, देन द टाइम टेकन टू ओवरटेक, उसको जो कवर करने में जो टोटल टाइम लगा उनको 54 सेकेंड लगा, तो टाइम इज इक्वल टू 54 सेकेंड। दिस इज द रीजन जो हमने उनकी स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है, बिकॉज टाइम सेकेंड्स में गिवन था। सो टोटल डिस्टेंस ओवरटेक करने में कितना कवर करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस टू कवर इज इक्वल टू लेंथ प्लस 2 लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, नो, ओके, सो फाइनल क्वेश्चन वाज कि हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। ओके, ठीक है, तो हमारे को इससे फिर इनका जो स्पीड और उनका रिलेटिव स्पीड का पता चल जाएगा। 80 km/h माइनस 40 km/h हो जाएगा। सो विल पुट ऑल दीज वैल्यूज 5/18 × 40 जो हमने आपको यहाँ पर बताया था, ये वाला। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू L + 12 3L डिवाइडेड बाई 54। ठीक है, तो इनको किया तो 200/18 इज इक्वल टू 3L/ 54 एंड अपॉन सॉल्विंग वी गेट L इज इक्वल टू 200 मीटर। जो लेंथ किसका है, एक्सप्रेस ट्रेन का एंड गुड्स ट्रेन का जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 200 इज इक्वल टू 400 मीटर। ओके, सो टाइम टेकन टू क्रॉस इज वी हैव टू फाइंड आउट। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और डिवाइडेड बाय स्पीड। देखो, एक चीज़ आपको इसमें समझना होगा कि डिस्टेंस जो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है प्लस में जो इसका खुद का लेंथ है वो दोनों प्लस करना पड़ेगा आपको। तो इनका खुद का लेंथ कितना है, एक्सप्रेस ट्रेन का लेंथ है 200 मीटर और जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है 400 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड जो है इनका 80 × 5/18 था, तो 85 × 400/18। ओके, सो 600/400 into 18. So you can just cut 2 ja, 3 ja, 9 ja, 27 second. Perfect. So this is the answer for 16th question. Now moving on to question number 17. In question number 17 we have that the area of shaded region in figure ABCD is the square of side 14 centimeter and this is and APB and CPD are semicircles. Okay. इस तरह के क्वेश्चंस जो हम लोग रिसेंटली डाबर एकेडमी में मॉक टेस्ट सीरीज हम लोग एक रन कर रहे थे, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हमने खूब सारे दिए थे बच्चों को। तो जिन्होंने किए थे उनका डेफिनेटली मार्क्स जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा आएगा इसमें एग्जाम में। सो दिस इज द फिगर एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द
what is the area of shaded region? So area of shaded region is equal to what? So because it is a square, तो स्क्वायर है तो इट मीन्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ठीक है, थोड़ा सा रफ डायग्राम हम बना देते हैं, ये आपस में टच कर रहे हैं यहाँ पर. दीज ऑल आर इक्वल. ठीक है, एंड दिस इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर. तो एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि शेडिड एरिया जो है वो ये है जो हम येलो से कर रहे हैं, हाईलाइट. दिस इज अ शेडिड एरिया. आपको क्या करना है, टोटल जो स्क्वायर है शेडिड पोर्शन इज इक्वल टू टोटल स्क्वायर का एरिया में से दो सेमी सर्कल जो है उनको माइनस कर दीजिए. एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स. ओके, सो जो यहाँ पर सेमी सर्कल जो है हमारे पास, क्योंकि इनका रेडियस सेम है, बिकॉज दे आर टचिंग, जस्ट डोंट माइंड द डायग्राम. दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर दे विल बिकम वन कंप्लीट सर्कल. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 14 माइनस पाई आर स्क्वायर. सो पाई इज 22/7. रेडियस अगर टोटल डायमीटर अगर इनका 14 सेंटीमीटर तो रेडियस वुड बी ऑफ कोर्स 7 इंटू 7 1 जा. सो दिस इज 154, दिस इज 196 minus 154. So final answer would be 22 centimeter square. So this is the answer. Now moving on to next question number 18. In 18 we have, it's a classic question on compound interest. In a factory the production rose from this to this in 2 years. Find the rate of growth. Okay. So initial जो production था that was 40,000. So let this be principal, 40,000 products, and after 2 years, this is called A represents amount, and the time period is 2 years. We have to find out the rate of growth, which is R. ठीक है, compound interest का based question है. So using the formula A is equal to P into 1 plus R by 100 time period 2. ठीक है, so इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं 48,400 एंड P अगर LHS में डिनोमिनेटर में आ जाएगा that would be 40,000 is equal to 1 plus R we have to find out by 100 raised to power 2. कट कर देंगे इनको. ठीक है, एंड अपॉन फर्दर सिंप्लीफिकेशन दे विल बी 121/100. जो पावर 2 है RHS में वो यहाँ पर आकर 1/2 हो जाएगा, विच विल बी स्क्वायर रूट. ठीक है, तो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11. 11/10 implies that is equal to 1 plus R by 100. 1 when taken to LHS माइनस हो जाएगा, तो 11/10 minus 1/1 is equal to R by 100. और इन सब की वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे देन 10 1 जा 10, 11 minus 10 is 1/10, 1/10 is equal to R by 10, and the value of R is 10, 1/10. So 1/10, बट आपको R परसेंटेज में फाइंड आउट करना था, नहीं सॉरी ये ऊपर चला जाएगा, तो 100, दिस इज 10. सो R परसेंटेज में 10% आंसर आ गया. So perfect. Now moving on to next question. In question number 19. So in question number 19 we have that find out the numbers in the box. This dash box plus empty box is equal to 10. Then plus symbol we have empty box plus empty box, and this is minus is equal to 8. So this is equal to 19 and this is equal to 7. So let us suppose we have multiple variables. These are x and y and these are a and b. ठीक है, सो इन इक्वेशंस को हम एक बार जल्दी से कर देते हैं. क्वेश्चन आसान है, लेंदी हो गया. ठीक है, तो इक्वेशन 1 x plus y is equal to 10, दिस इज इक्वेशन 1. देन a minus b is equal to 8, दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, देन x plus a is equal to 19, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. देन y plus b is equal to 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. सॉल्विंग दोज, नाउ हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 3 हैं, तो उनको करेंगे कैसे, देखिए. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3. ठीक है, सो दैट वुड बी x plus a minus y plus b. सो 19 minus 7 that would be 12. ठीक है, सो माइनस सिंबल ऑफ कोर्स, माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो चेंज कर देगा उनको. सो वी विल गेट x minus y plus a minus b is equal to 12, and then you have a minus b का वैल्यू 8 आपके पास, तो x minus y का वैल्यू जो आ गया that would be 4. सो बॉक्स में पुट कर दिया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5. परफेक्ट, हम येलो से मार्क कर देते हैं इसको. देन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 5, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 5 जो हमारे पास x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 4, इनको एक बार हम क्विकली कर लेते हैं. x plus y
इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, देन 2y प्लस वाई माइनस वाई 0, 2x इज इक्वल टू 14, वी ऑब्टेन x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू इसी इक्वेशन पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और ये सब वैल्यूज हम x प्लस a इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम पुट करते हैं इनमें, तो वी वुड ऑब्टेन वैल्यू ऑफ a एंड b एज वेल। सो अपॉन कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ a इज 12 and value of b is 4. So these are the final answers for question number 19. Moving on to the next question. In question number 20, examiner says that what number should replace the question mark. So there is a certain relationship, series based question is equal to this, 24 into 24 is equal to 18 and 25 into 25 is equal to question mark, that we have to find out. So we will try to establish the relationship. So 13 into 13 is 196 and 196 means कि 1 plus 9 plus 6, 10 plus 6 is 16. परफेक्ट, यहाँ पर हमारे को पैटर्न पता चल गया। 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 में सम ऑफ डिजिट्स इज 5 plus 7 plus 6, 18. परफेक्ट। सो जो वैल्यूज हम चाह रहे थे वो हमारे को मिल गई हैं, तो पैटर्न भी पता चल गया। तो 625 इज इक्वल टू 6 plus 2 plus 5 इज इक्वल टू 13. सो दिस इज द आंसर, 13 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20. सर्कमफेरेंस ऑफ बेस सर्कल जो है कंप्लीट which is equal to 2 pi r. 2 pi r is equal to 44 centimeter. So 2 pi r is equal to 44 centimeter. We will just try to find out the value of r. R का value जो हो जाएगा that would be 7 centimeter. You can just calculate it. कैसे? 2 into 22 by 7 into r is equal to 44. So 22 1 जा 2 जा and 2 से 2 cancel and r RHS में न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो then we will obtain r is equal to 7 centimeter. So don't get confused कि सर आपने कैसे कर दिया. And volume of cylinder formed, that would be the formula for volume is pi r square h. So v is equal to, v denotes volume, 22 by 7 into 7 into 7 into 6 and upon calculation आप कर लीजिएगा इसको, the answer would be 924 centimeter cube. Cubic centimeter बोल देते हैं. So 21 का ये आंसर है. Now come on, let's move on to question number 22. In question number 22, examiner says that a railway ticket. So these are word problem based questions. बेसिक आपकी अलजेब्रा की अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट करते हैं, इक्वेशंस कैसे परफॉर्म करती हैं. सो आप क्या करते हो, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप पढ़ते हो उनको. रेलवे टिकट फॉर ए चाइल्ड कॉस्ट हाफ द फुल फेयर. ओके, ठीक है. लेट x रुपीज बी द फुल फेयर. फेयर का मतलब होता है किराया, टिकट, एंड y विद द रिजर्वेशन चार्ज. यू जस्ट मूव कंट्री में आप ट्रेन में जाते हैं तो दीज आर द रिजर्वेशन चार्ज, रिजर्वेशन आप करवाते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव दैट x plus y is equal to 362. So this is equation number 1 and also one reserved a ticket for a journey between two stations at 362. Okay, and one full and one half reserved tickets cost 554. Okay, so x plus y plus x by 2 plus y is equal to 554. Okay, so solving this, x वेरिएबल को x के साथ ऐड कर देते हैं और y वेरिएबल को y के साथ ऐड कर देते हैं. Then we would obtain 3x by 2 plus 2y is equal to 554 and इनको वैल्यू को चेंज किया तो जो डिनोमिनेटर में 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और RHS में जाकर भी सब्सिक्वेंटली मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3x plus 4y is equal to 1108. So let us suppose this is equation number second. Okay, second इसको मान लेते हैं. This is equation number 3. So now multiply equation number 1 by 3, क्योंकि जो आपके वेरिएबल है उनकी वैल्यू 3x हो जाएगा. So उनको मल्टीप्लाई करके हम कंपेयर करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में से. So what you will obtain is, एक लाइन डिफरेंस के लिए मार्क कर दिया 1108. So इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x plus 3y is equal to 1086. ठीक है. So माइनस माइनस माइनस, so 3x minus 3x is 0, 4y minus 3y is y is equal to 22. सो परफेक्ट, हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है और यही निकालना था. वाई वॉज द रिजर्वेशन चार्ज एज वी हैड अज्यूम्ड देयर. ऊपर देखिए. सो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट ए कोइंसिडेंस. क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर आंसर भी वही है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 23 देयर आर 2 रूम्स A and B at a center of RIMC entrance exam. Okay, pretty good. So if 10 candidates are sent from room A to room B, the number of candidates in each room is the same. ठीक है. So let us suppose these are the 2 rooms. This is room A and this is room B. ठीक है. So यहाँ से -10 से
यहाँ पर जब किया +10, ऑफ कोर्स मूवमेंट अगर होगा तो उधर ज़्यादा हो जाएंगे दूसरे रूम में. सो लेट इनिशियली इन रूम नंबर A लेट अस सपोज कि देयर आर X स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टार्टिंग में, एंड B देयर आर Y स्टूडेंट्स, एंड वी विल क्विकली मेक नाउ इट बिकम्स, इक्वेशन जो है वो बन जाएगा, इसमें से जब 10 किया तो वहाँ पर कितना हो गया y + 10. ओके, सो x इधर LHS में आके इट इज़ माइनस, और ये -10 RHS में जाके प्लस हो जाएगा. सो बॉक्स में पुट कर दे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड अगेन सो फिर से क्या हुआ, डबल द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन B. ओके, सो x + 20 इज इक्वल टू 2 × y - 20. सो फिर से एक बार इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. वी विल गेट x - 2y इज इक्वल टू -60. This is equation number 2. Comparing these two equations, we will get a value of our variable, and this is comparing equation 1 and 2. I'm writing in shortcut. So x minus y is equal to 20. This is -60. Okay, so इनको compare कर दिया, minus plus हो जाएगा. Okay, so 3y, okay, 2y minus y is y, and this is 80. y का value जब 80 आ गया, तो putting this value in equation number 1, you will get x is equal to 100. So room A के अंदर कितना स्टूडेंट्स हैं, 100 हैं, रूम B के अंदर कितना, 80 स्टूडेंट्स हैं, and this is our answer. Now moving on to question number 24. Question number 24 we have, so binomial equations, x square, actually there is a one variable, so it's a quadratic equation, x square minus 7x plus 12 divided by x square plus 4x minus 12 divided by x minus 4. Okay, so splitting the middle term इसमें हम यूज करेंगे. splitting the middle term कर आप इनके फैक्टर्स कर देते हैं, फैक्टराइजेशन. splitting the middle terms we will obtain, so 8 मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 12, और सम जो है वो 8 होना चाहिए. so that would be x square plus 6x plus 2x and then minus 7x and 12, so that would be 4 and 3. Okay, so usually हमारे जो क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं उनमें हम आपकी काफ़ी अच्छी इसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं फैक्टराइजेशन. एक्चुअली वी हैव वेरी रियली गुड प्रोग्राम. दिस ईयर ऑल्सो वी हैड ऑनलाइन क्लासेस, सो वी मेड श्योर कि बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो. डिवाइडेड बाई x माइनस, ओके, सो डिवीजन को हटा देते हैं हम लोग, सो इट बिकम्स मल्टीप्लिकेशन. सो x - 4 टेकन टू द न्यूमरेटर एंड 4x -12 होना चाहिए. सो 6x - 2x प्लस 6x - 2x - 12, राइट. सो इन सबको किया, तो अब हम एक बार क्विकली इनको क्या कर देते हैं, फैक्टर्स को असेंबल कर देते हैं. x + 6 बाई x - 3 एंड x - 4 मल्टीप्लाइड बाई x - 4. दिस वुड बी x + 6 एंड माइनस कॉमन लिया तो x - 2, राइट. सो जब आपने इनको कट किया, so you will get +6 + 6 -4 - 4. Okay, so this is the final answer. So this is the answer. Now let's move on to question number 25. In question number 25, examiner says what price did Ram mark at the printed price of a bag purchased at 380, so that after giving discount of 5% there is 25% profit. Okay, so what is the CP? Cost price is 380, ठीक है, एंड डिस्काउंट इज 5%. ऑल्सो देर इज ए विश दैट प्रॉफिट परसेंट हो वो कितना हो आफ्टर डिस्काउंट, 25%. सो दिस इज वॉट एग्जामिनर हैज़ गिवन अस. सो लेट द मार्कअप प्राइस बी x रुपीज़. देन सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस वुड बी 95x बाई 100, बिकॉज 5% डिस्काउंट देते हैं ना आपने. सो हम उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो दैट वुड बी 19 5 जा 5 19 जा एंड 5 20 जा. ओके, नाउ वी ऑलरेडी नो दैट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में जो रिलेशनशिप होती है वो होती है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट चाहते हैं तो प्रॉफिट परसेंट पॉजिटिव हो जाता है, इज इक्वल टू पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज. सो 19/20 ऑफ x इज इक्वल टू 380 इंटू प्रॉफिट परसेंट इज 25%. सो 100 1 जा 100 प्लस 25 125/100, 25 5 जा 25 4 जा, ठीक है. और x इज इक्वल टू 380 इंटू 5/4, और 20 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 19 डिनोमिनेटर में. सो 19 1 जा 19, 2 जा 38, 0 4 5 जा. सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, सो दिस इज व्हाट वी गेट.
ठीक है। सो x की वैल्यू 500 आ गई और एज यू कैन सी मार्क का प्राइस हमने क्या अज्यूम किया था, x। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 वर्क। सो वर्क पर बेस्ड क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम पर। ये हर बार आते हैं आपके एग्जाम्स के, अगर आप लास्ट ईयर एग्जाम्स देखेंगे तो। इफ 3 men or 4 women can do a piece of work in 43 days, how long will 7 men and 5 women take to complete the same work? In these questions what the strategy is कि आप सिंगल पर्सन का, सिंगल डे का या फिर सिंगल आवर का आप जो है टाइम निकाल लेते हैं। सो ये सेज कि 3 men can complete the work in 43 days, okay, and 4 women can complete the work in 43 days, ठीक है। So it means the work done by 3 men and 4 women is equal to, therefore the work done by 1 man, 3 LHS में जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा RHS में। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बॉक्स में डाल दिया आपने। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि 7 वुमेन प्लस 7 men प्लस 5 वुमेन अगर उसको काम को करते हैं तो वो कितना टाइम में करेंगे। सो लेट अस सपोज कि वो कितना करते हैं, x डेज में उसको कर लेते हैं फिनिश सेम काम को। नाउ जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको देखिए हम कैसे करेंगे। सो 7 इंटू हमने जिसको हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, ये जो रिलेशनशिप है मैन का यहाँ पर पुट करेंगे हम। सो 4/3 इंटू वुमेन ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 वुमेन। सो 7 4 जा 28/3 वुमेन प्लस 5 वुमेन। सिंस W इज a variable is common, so 28/3 plus 5 women is outside. So after adding these, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 फ्रैक्शंस को ऐड किया divided by 3. ओके, नाउ मंथ डे एंड आवर का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको वैल्यूज़ को रखा। तो 4 women into 43 divided by 1 is equal to 43/3 W into X, which is basically total जो number of days लगे हैं हमारे को, and divided by 1. So solving all these values, 4 into 43 is equal to 43/3 into X, and once we start solving 43 1 ja 43, 4 into 3 12. So number of days that they will take is 12 days. So this is the answer for question number 26. Moving on to question number 27. Examiner says the difference between the compound interest and simple interest. It was a pretty easy question, directly formula based question है 27. So we are given that the difference between CI and SI is 500 rupees. Okay, so the difference is 500 rupees and time period is 2 years and the rate of interest is 10%. Okay, so we have to find out कि basically find the sum, जो ओरिजिनल अमाउंट था वो बताना था हमारे को। ठीक है, सो हमारे पास फॉर्मूला होता है when we are given with the difference between SI and CI, then the formula is P into R square by 100 square. Okay, so values put किया, difference is 500 rupees, P into rate of interest is 10 square is equal to 100 by 100 into 100. ठीक है, so principal is, इनको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 50,000 हमारे पास आ गया एंड दिस अमाउंट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड एनुअली अगर करेंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो अमाउंट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 11/10 होल स्क्वायर, सो 50,000 into 121/100 and upon solving you will get the final value to 2020 cut 2051. Okay, so 605 60,500 is the answer for question number 27. Now moving on to question number 28. Length of a classroom is twice its height. Okay, so length is 2 times of the height and breadth is 1/1/2, which is equal to 3/2 of the height. Okay, the cost of whitewashing the 4 walls at the rate of this is total cost given and the rate per meter square. So rate per meter square is 1.60 per meter square and also total खर्चा दिया हुआ है कि टोटल जो व्हाइट वॉशिंग है इसका खर्चा कितना है। तो आप जब ऐसा गिवन होता है तो आप क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, बट स्पेसिफिकली इन्होंने कहा कि 4 वॉल्स का एरिया। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट खर्चा कितना हुआ है 179.20 एंड रेट कितना है 1.60, डेसिमल्स कैंसिल कर देंगे आप 100 100 20 20 10 10 and upon further solving you will get 112 meter square, right?
सो एरिया 4 होल्स एक्चुअली होता कितना है, मतलब एक क्यूबॉइड है जिसमें ना आपने क्या किया, नीचे का जो आपका सरफेस है, ऊपर का जो छत है, उनको हटा दिया, तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। और जो वैल्यूज हमारे पास लेंथ और हाइट का जो पहले से गिवन है उनको हम एक बार इसमें रख देते हैं। सो 2h प्लस 3/2 h इंटू एच इज इक्वल टू, ये ट्वाइस जो है ये वाला जिसको हम ग्रीन से मार्क करें, दूसरी साइड जाकर इसने डिवाइड कर दिया, सो यू ऑब्टेन 56, ठीक है। सो अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, सो 2 2 4 प्लस 3 7 इंटू एच बाई 2, सो 7h/2 इंटू ब्रैकेट h इज इक्वल टू 56, ठीक है। तो अब h इंटू एच इज h स्क्वेयर, 56 इंटू 2/7, 7 1 जा 7 8 जा, h स्क्वेयर इज 16, सो h का वैल्यू जो हाइट आ गया आपका कितना आ गया, 4 मीटर। परफेक्ट, हाइट आपका 4 मीटर अगर आ गया है तो वैल्यू जो आपके पास थी लेंथ कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 मीटर, और दैट वुड बी ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4, 1 जा 2 जा 6 मीटर। सो दिस इज द आंसर, आपके डायमेंशन सारे आ गए। सो आपको क्या निकालना था, टोटल एरिया निकालना था, ओके। सो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो लेंथ कितना है 8, ब्रेड्थ कितना है 6, 48 मीटर स्क्वायर। ऑल्सो आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो टोटल कॉस्ट जो है दैट वुड बी टोटल कॉस्ट इफ इट इज 6.75 एंड यू हैव 48, सो आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल कैंसिल कर लीजिए, क्विकली कैलकुलेट कर लीजिए, 75 25 से डिवाइड होगा, सो इट वुड बी 324 रुपीज़। सो दिस इज योर आंसर एक्चुअली। Moving on to second last question. In question number 29 we have, again this is a pretty standard question. Almost हर एग्ज़ाम में आपके जो टैंक के फिलअप क्वेश्चन के जो टाइम है और कितना टाइम लगता है एम्प्टी करने में, फिल करने में, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ए टैंक कैन फिल अप 2 टैप्स, कैन बी फिल्ड बाई 2 स्टेप्स ए एंड बी इन 12 आवर्स। सो ए क्या करता है, फिल करता है, कितना टाइम लेता है 12 आवर्स, फिर बी फिल करता है तो 16 आवर्स लेता है, ठीक है। ओके, सो हाउ मच विल दे विल फिल इन, लाइक 1 आवर में उसका कितना करेंगे टोटल। अगर वो ए जो है वो 12 आवर्स में कंप्लीटली फिल करता है तो वर्क डन इन 1 आवर, टोटल जो पोर्शन है उसका 1/12 हिस्सा वो फिल कर पाएगा। वर्क डन इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/12 एंड वर्क डन बाय बी इन 1 आवर बाय ए एंड दिस इज बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट the full tank can be completely emptied by a third tap. Let us just call this one C, और माइनस करता है तो उसको रेड से कर दिया हाईलाइट, एंड इट टेक्स 8 आवर्स, ठीक है। दिस वन इज द वन दैट कैन एम्प्टी, खाली करना आसान होता है। सो क्योंकि ग्रेविटी आपके साथ काम करती है, राइट। सो वर्क डन बाय सी इन 1 आवर, 1 आवर में वो टोटल अपना जो कर सकता है फिल, उसका कितना पोर्शन 1/8 उसको खाली कर देगा। सो इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें, देन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड अप कंप्लीटली। बिल्कुल जीरो से आपने स्टार्ट किया, तीनों को एक साथ ओपन कर दिया कि 2 फिल कर रहे हैं और 1 खाली कर रहे हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसको करने में। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय ऑल 3, ठीक है। सो ऑल 3 जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 1/12 प्लस 1/16, और जो खाली कर रहा होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। दिस वन विल गेट इन माइनस, ठीक है। तो आप इनका कैलकुलेट करेंगे, सो 48 4 जा प्लस 3 जा माइनस 6 जा, ठीक है। सो 7 - 6 इज 1/48, जब तीनों करते हैं तो 1/48 ऑफ, सो टोटल टाइम टेकन इज 48 आवर्स, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 48 आवर्स। ऑल राइट, नाउ फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सो इट्स रियली गुड, अगर आपने ये वीडियो, आपका सेशन हमारा जो अभी यहाँ तक देख लिया, देन चीयर्स टू यू, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप और लर्निंग रिसोर्सेज के लिए आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट। इन क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, ड्रॉ ए पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द अबाउट डाटा। ओके, सो आई वोंट बी मेकिंग अप द एग्जैक्ट टेबल, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। सो सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, टिम्बर, लेबर एंड मिसलेनियस खर्चा जो उन सब का आपको दे रखा है। सो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 100% टोटल एक्सपेंडिचर वुड बी 100%, ठीक है। सो दिस इज 100%, बट आपको एक चीज़ समझना है कि अगर आप पाई चार्ट में करते हैं तो ये 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 डिग्री को,
राइट। ये आपका इनसाइट आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर देता है क्वेश्चन का। सो ये 100% 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीमेंट जो है इट इज़ 30%, तो 30% ऑफ व्हाट 360 डिग्री, तो 30 by 100 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री एंड अपॉन सॉल्विंग यू विल गेट 108 डिग्री। परफेक्ट। आपको ड्रॉ करना था इस तरीके से आप इन चीज़ों को, आई वॉन्ट बी एबल टू एग्जैक्टली ड्रॉ, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर, सो लेट्स सपोज दिस इज सीमेंट, ठीक है। आप इस तरीके से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यू हैव स्टील, स्टील इज 10% ऑफ 360 डिग्री, 10 by 100 इन 360 डिग्री, दिस इज एग्जैक्टली 36 डिग्री, ठीक है। सो सम वॉट ऑफ दिस इज एक बहुत ही रफ क्रूड सा डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ मैं, और आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। देन यू विल हैव ब्रिक्स, ब्रिक्स को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ब्रिक्स इज 10% अगेन, सो इट शुड बी 36 डिग्री, दिस इज ब्रिक्स, और इस तरीके से आपका डायग्राम रेडी होता जाएगा। दिस इज स्टील एंड देन टिम्बर इज 15%, 15 into 36, okay, so that would be 54. So 54, let's suppose this is 54 degree for timber. Then you have labor 25%, so 25% is exactly 90 degree, ठीक है। so ये कंप्लीट जो है राइट एंगल, ये 90 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेबर को, और जो रिमेनिंग मिसलेनियस है 10% है, इट मीन्स 36 डिग्री, वो यहाँ पर आ गया। सो हेयर वी आर। सो दैट्स ऑल फॉर मैथमेटिक्स, होप यू हैड अटेम्प्टेड वेल। डिटेल सॉल्यूशन का इसका PDF हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वहाँ पर आपको ये सारा मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कॉन्टीन्यूसली लर्निंग रिसोर्सेज को फ़ायदा उठा रहे हैं, और जितने भी टॉप बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन सी यू, जय हिंद।